Hello students. So today we'll be discussing the deleted syllabus of class 12th maths and what exactly is there and what not, and the anomalies in the deletion. 12th maths syllabus at portions has been deleted in such a way that to teach undeleted portion you have to teach deleted portion. So many places where things have been deleted, teachers will be forced to teach, then only we can do, and there are discrepancies which we'll discuss as we go on. So today we'll be discussing with you the complete analysis, what all is there, what all is deleted, and once we complete this PPT, we'll give you page wise, question number wise what has been deleted and what is there, which you can save, and later on during your examination preparation you can use that. So we begin with relation functions. Relation functions, the deletion portion which has come. Now left was the syllabus before, and on right you will find here or this portion the deleted. So composite functions has been deleted. So FOG, GOF, FOF, GOG, all questions relating to that are deleted. Finding inverse of a function is again deleted. So the two deletions which have come out here is composite functions and inverse of a function, and most of you must have done it because by the time the deletion came, already many teachers had taught. The major deletion have come in this important chapter, inverse trigonometry. Now inverse trigonometry, almost everything has gone, hardly anything left. Just exercise 2.1 to be very precise is left. The graphs are gone, the properties are gone, all important. It's only the definition, range, domain and principal value branch. So inverse has seen lot of scissor cutting, there has been lot of censoring, and again as I said, by the time this deletion came, most of you must have already done. So the things which have been deleted are from the first book mostly, which teachers have taught. So this is one more deletion which has happened. So you don't need to do anything. Principal value, at the most I believe sine inverse sine x equal to x you can do. Apart from that there is nothing else which you need to do out here, and the value of principal branch that you need to do. Marks wise it is same, they have not altered any marks as such for this topic. Then we come to matrix algebra, right? Then we come to matrix algebra. Here we'll explain. So here this is the portion which was there, and in red we have marked what is deleted. So it is one of the things that is deleted is existence of non-zero matrices whose product is zero. So ऐसी दो मैट्रिक्स जो खुद नल नहीं है, उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, वो हटा दिया. कोई खास फर्क नहीं, क्यों हटाया वो जाने. Restrict to square matrices of order 2. एलिमेंट्री रो एंड कॉलम, ये बच्चों को सबसे ज्यादा दुखी करता था और ये सही मायने में अच्छा डिलीशन है. इट वाज जस्ट टाइम टेकिंग एंड दिस वन. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग इनवर्स इज गॉन. इनवर्स मैट्रिसेस आर देयर, बट प्रूफ ऑफ इनवर्स ऑफ यूनिक इफ इट एग्जिस्ट जनरली बोर्ड में बहुत ही कम आया है, कई जगह तो पढ़ाया भी नहीं जाता था. तो ये जो प्रूफ है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा. So this is one portion that has got deleted from here, right? So not much deletion. Major deletion is this elementary and column row operations. And now comes the major determinants where major deletion has happened. जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता था properties के question उस पे. But again I said you might have done it क्योंकि ये बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया और ये लेट आया. इसमें क्या क्या जो भी properties हैं सारी delete हो गई. क्या रह गया? यस, माइनर्स रह गया, कोफैक्टर रह गया, एरिया निकालना रह गया, एडजॉइंट रह गया, इनवर्स निकालना रह गया, ये रह गया. कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय एग्जांपल्स. तो ये जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालना होता है वो खत्म है. लेकिन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फॉर यूनिक सॉल्यूशन है. तो मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो नहीं है. खाली जो एक सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है वो वाला बेसिक यूनिक सॉल्यूशन है. तो इसमें जो बेसिक मेजर डिलीशन मैं कहूँगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. इसमें तो कोई खास है ही नहीं.
ये तो आता भी नहीं था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी आता था। सो द मेजर डिलीशन इज ये प्रॉपर्टीज जिसमें नाइट मेयर्स आते थे, सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस फिनिश, खलास। सो देयर इज नो मोर लेफ्ट। नेक्स्ट वी now move on to the chapter for calculus, where we have continuity and differentiability. Just one topic has been deleted in differentiability के continuation में, Rawls and Lagrange's mean value theorem and their interpretation। तो एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसमें से उड़ा दी गई है, Lagrange's और Rawls थ्योरम नहीं है। We'll tell you the पेज नंबर कहाँ से क्या क्या डिलीट हुआ है। Next we move on to AOD, application of derivatives। Here rate of change एक important topic रहता था और बड़ा सा भी था थोड़ा सा, जहाँ रेट कराते थे वो हटा दिया। अप्रोक्सीमेशन तो छोटू सा चैप्टर था और इजी सा चैप्टर था, उसको हटा दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज इट इज है, मैक्सिमम मिनिमम एज इट इज है, टेंजेंट नॉर्मल एज इट इज है। क्या हट गया? रेट ऑफ चेंज एक्सरसाइज हट गई और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन आपका हटा दिया गया है, राइट। देन वी कम ऑन टू चैप्टर 3 इंटीग्रल्स। इसमें सबसे बड़ी अनोमली की है इन्होंने ये दो पोर्शन तो हटा दिए, ठीक है ना, ये दोनों पोर्शंस जो है हटा दिए और इन्होंने क्या किया है कि इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस, सिंपल इंटीग्रेशन एंड बेस्ड ऑन देम, तो ये जो क्वेश्चंस थे इसको डिलीट किया है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन के होगा या ये लीनियर डेरिवेटिव, पर कई बार हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, तो कई जगह थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से तुम ये पढ़ ही लो तो अच्छा है, पूरी इंटीग्रेशन में कुछ खास तो डिलीट हुआ नहीं है, तो ये भी कर लो, इसमें कोई ऐसे नहीं है। हाँ, ये लिमिट एज अ सम डेफिनेट में हटा दिया, तो लिमिट एज अ सम के कोई क्वेश्चन नहीं करने आपको। इनडेफिनेट में बहुत छोटा सा डिलीशन है, पर हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चंस फॉर्म्स पे आ ही जाते हैं, या ऐसा हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एप्लीकेशन। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसको मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस है। देखिए, फाइंडिंग अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइन, सर्कल्स, पैराबोला तो हैं, लेकिन जब दो कर्व आ जाती हैं बिटवीन टू कर्व्स, एक पैराबोला एक सर्कल, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस, दो पैराबोला दो सर्कल, ऐसे क्वेश्चंस डिलीट हो गए। मजेदार डिफरेंशियल में फॉर्मेशन डिलीट हो गया जब जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कि इक्वेशन सोल्यूशन दे रखा है, उससे इक्वेशन बनाना। एक होता है इक्वेशन से सोल्यूशन सेटिस्फाई कराना, एक है इक्वेशन से फॉर्म करना, वो हट गया। और एक अननेसेसरी, ये देखो बहुत छोटा सा डिलीट हुआ है, ये फॉर्म रह गया, इसको हटा दिया। ये मेरे समझ से बाहर है, जब ये फॉर्म बच्चा कर ही लेगा, इसको हटाने की जरूरत क्या थी। पर खुश रहो, अगर तुम्हें हटा दिया गया है तो लॉटरी है, बर्नौलीज इक्वेशन की। अब हम चलते हैं वेक्टर। वेक्टर में एक टॉपिक हटा है, स्केलर ट्रिपल। एनसीईआरटी में तो उसके क्वेश्चन दे नहीं रखे, वो अलग से सप्लीमेंट्री में थे। तो स्केलर ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ट्रिपल था ही नहीं, स्केलर ट्रिपल आपका हट गया है। तो जिसमें A क्रॉस B डॉट C हम निकालते हैं, वैसे क्वेश्चंस लिख गए, ठीक है। लेकिन वही 3D में इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हटाया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी वही निकालना होता है। तो बंच ऑफ कॉमेडीज की हुई है कई जगह, एक कॉन्सेप्ट हटा दिया, उसका अगले जगह एप्लीकेशन है, उसको नहीं हटाया। तो ऐसे ही है कुछ कुछ। 3D आई है, 3D में सबसे बड़ा ड्रामा है, क्या हटाया? एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन से लाइन एंड ए प्लेन, बाकी क्वेश्चंस नहीं हटाए, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे भैया, इनके ऊपर बेस्ड जो टॉपिक है वो हटे नहीं है, इनको हटा दिया। नाउ टू टीच अनडिलीटेड पोर्शन यू हैव टू टीच डिलीटेड पोर्शन। तो इसको समझाए बगैर कई चीज हो नहीं सकती। तो भगवान जाने इन्होंने क्यों डिलीट किया, कैसे किया, क्या दिमाग लगाया, यही जानते हैं। इसके बगैर इन सबको पूरा समझना असंभव है, अगर अच्छी तरह समझना है। तो ये हो सकता है दो एंगल निकालो, दो, इनमें कुछ होता ही नहीं था, तो डायरेक्ट टॉपिक है, तो या तो इसमें डिलीट ही नहीं करते। अब किया भी ऐसे है कि कोई फायदा नहीं है, बट दिस आर डिलीटेड टॉपिक्स। एंड देन कम्स लीनियर प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन है, ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मतलब ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन दिया है इन वेरिएबल्स, और एक अनबाउंडेड रीजन जो है वो हटा दिया, ठीक है।
और फिजिबल एंड इनफिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट। 3 कंस्ट्रेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो तो पहले भी थे, पर फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम्स हटा दी है और अनबाउंडेड जो इनफाइनाइट रीजन ले लेते हैं वो हटा दी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए बर्नौलीज तो पहले ही हट गया था, तो बाइनोमियल थ्योरम। रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, उसका मीन और वेरिएंस जो है उसको निकालना हटा दिया गया। सो मीन एंड वेरिएंस हैज बीन डिलीटेड एंड वी विल सी सब्सिक्वेंटली पेजेस में एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। So students, now we will discuss what exactly has been deleted from your NCERT pages, right? So now we'll take you through to the pages which will be very useful once you are revising or preparing finally for your board exams. Now this is relation and function. So what all is deleted, I'll tell you. This is page number which we have given and specific questions or examples or exercise. So as you can see, the example numbers have been mentioned and the page numbers. These are very important for you, right? Like here we have written deleted completely except example 41, 42, 43 on page 29. So 20 to 26 is deleted completely except this 3 example which come on 29, right? This should be on example 26. This should be on page 26. Not a way. I'll correct it. This should be except on page 26 because 29 is anyway coming. So all examples, because we said 20 to 26 delete हो गया, except example 41, 42, 43 on page 26. 27 example 45 miscellaneous questions which all has been deleted, page number and this. And again the further pages questions and this are the deletion. So this all come under miscellaneous. यहाँ से शुरू हो गया तो ये भी miscellaneous का पार्ट है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में रोक के भी देख सकते हैं वीडियो। इनवर्स ट्रिगो में आते हैं, इसमें सब कुछ ही उड़ गया है, खुशी मनाने का जाए, बहुत बल्ले बल्ले है। एक्सरसाइज 2 ओनली टू बी डन। देखो मैंने और जगह तो बोला डिलीट, यहाँ करना कम है इसीलिए मैंने दिया है ओनली टू बी डन। पेज 42 में ये है 48 एक्सरसाइज, मतलब 42 में इस एक्सरसाइज के बाद जो भी कुछ है सब डिलीट, कैंची खश खश। 42 एक्सरसाइज 2.2 भी डिलीटेड। 51 में मिसलेनियस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, खाली आपको 1 and 2 करने हैं, रेस्ट ऑल डिलीटेड। इनवर्स ट्रिगो तो रेस्ट ऑल डिलीटेड करना क्या है 1 and 2, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, 1 and 2 करना है और यहाँ 2.1 करना है, बाकी सब छोड़ना है। एनॉमली ये है कि डिफरेंशिएशन में फंसोगे, वहां कुछ नहीं काटा तो वहां जो सब कई क्वेश्चंस है वो आएंगे। अब मैट्रिसेस में आते हैं, पेज नंबर 90 में जैसे 3.7 में एलिमेंट्री ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वो हट गया, 92 में एग्जाम्पल हट गया, ये एग्जाम्पल हट गया ये। तो ये देखिए आपके लिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकाल के दिए एनसीईआरटी से, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कटे और अगर पूरी एक्सरसाइज डिलीट हुई है तो मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है बच्चों। डिटर्मिनेंट्स मेजर कट 109 में प्रॉपर्टी 1 से शुरू होके आगे जाती है सब कट। देखो 110 इसीलिए आ गया, 120 क्योंकि 109 में और भी कुछ होगा तो खाली प्रॉपर्टी 1 डिलीटेड है, उसके ऊपर वाला होगा। 110 to 21 डिलीटेड। 137 में एग्जाम्पल 30। तो आपको मैंने एक एक पेज बताया कहाँ क्या है और ये मिसलेनियस शुरू हो गया तो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 डिलीटेड और बाकी ये है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्वेश्चंस ना ढूंढना पड़े एकदम स्पेसिफिकली। डिफरेंशिएशन एंड एओडी। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी में खाली मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम दोनों साथ ही आते हैं। तो ये 5.8 पे मीन वैल्यू थ्योरम है वो डिलीटेड। अप टू कहां तक 184 to 186 मतलब अप टू एक्सरसाइज 5.8 डिलीटेड। 194 to 198 एनसीईआरटी का रेट ऑफ चेंज है वो पूरा डिलीटेड। 214 to 16 अप्रोक्सीमेशन पूरा डिलीटेड। ये बेटा मिसलेनियस के एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स हैं ये? पेज 234, 235, 239 मिसलेनियस एओडी एप्लीकेशन का एग्जांपल 42, 43, 44, 49 चार डिलीटेड। और ये है मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं वो मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे,
ये मिसलेनियस की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन, पेज 242 और 43 है, उसमें 1, 3 और 19 डिलीटेड है। क्लियर, 1, 3 और 19, ये बुक 1 खत्म हो जाती है, क्या क्या कहाँ कहाँ डिलीटेड है। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जाम टाइम्स और सब्सिक्वेंटली करियर ऑप्शन से लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए आएंगी। देयर विल बी मोर अपडेशंस कमिंग फ्रॉम CBSE ऑन एग्जामिनेशन दिस टाइम। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट एंड गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। इनडेफिनेट में मैंने कुछ नहीं काटा, NCERT में ऐसा कुछ नहीं काटा, खाली वो एक फॉर्म जो कटी है वो इन क्वेश्चंस की है, जैसे 2x + 3, ठीक है ना, √x² + 5x - 7, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कट गए हैं। और एक है खाली ये √x² + 3x, इस तरह के मान लो कोई क्वेश्चन है, ये कटे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो सिंपल हो, x² - 16, ये हैं। तो मतलब जो √x² - a² है वो है, √a² - x² भी है, और √x² + a² भी है। क्या नहीं है इसका, ये ax² + bx + c, ये नहीं है बच्चे, ये डिलीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस डिलीट हो गए, ये टिक है। तो इसीलिए इनडेफिनेट में कुछ काटा नहीं मैंने, डेफिनेट सीधा आ गया। 331 to 334 में लिमिट एज अ सम है, पूरा का पूरा डिलीटेड, ठीक है। इनडेफिनेट में मत छोड़ना कुछ, सारा ही कर लेना। डेफिनेट में 331 to 334 डिलीटेड। एरिया मेजर डिलीशंस कई कई जगह है, 361 से 371 डिलीटेड। 372 में ये 2 क्वेश्चंस हैं, 373 में ये एग्जाम्पल है, 373 में एग्जाम्पल 14, 376 में ये है। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा डिलीटेड है, मैंने नहीं हटाए, जैसे कहीं एक लैटस रेक्टम आ रहा है, अब एक पैराबोला आ रहा है और पैराबोला के साथ लैटस रेक्टम है, तो ये बिटवीन 2 फिगर्स नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस जहाँ एक पैराबोला जा रहा है और एक लाइन जा रहा है, तो वो हमने ले लिए, मान के चलें कि क्यों छोड़े, कंट्रोवर्सी में नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखिए जैसे ये है 2 पैराबोला के बीच एरिया है, तो ये कट गया, या फिर एक सर्कल है और एक पैराबोला है, ये एरियाज कट गए हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट आई हैव डिलीटेड, ठीक है, ये एरिया का हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, फॉर्मेशन डिलीटेड है, और एक वो dx/dy + py = q वाले डिलीटेड है। आप ये देख लो, मैंने एक एक एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर दिया है कि कहाँ क्या डिलीटेड हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये पूरा डिलीटेड मतलब ये पूरा डिलीटेड है, इसमें ये एग्जाम्पल डिलीट हुआ, इसमें क्वेश्चन। तो आप देखो हमने कितनी माइन्यूटली निकाल के दिया कि एक पेज में एक क्वेश्चन या ये ऐसे या एग्जाम्पल, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये EX एग्जाम्पल ही है बेटा, EX एग्जाम्पल ही है। अगर एक्सरसाइज होगी तो पॉइंट्स में होती है, तो ये सब एग्जाम्पल ही है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 25 ही है, तो आप कभी भी बाद में वीडियो भी चला के टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी है। अब ज्योमेट्री 3D, अब इसमें जो डिलीटेड है मैंने आपको लिख दिया है ये, और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स है, ये 11.8 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये डिलीटेड है। 11.10 में ये एग्जाम्पल 25 डिलीटेड है, क्वेश्चन 12, 13, 3 ये एग्जाम्पल्स। तो स्पेसिफिकली मैंने मार्क कर दिया है कि क्या क्या डिलीटेड है। इसमें हमने पूरी मेहनत करके निकाला है, कुछ चीज़ फिर भी छूट जाती है कई बार, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं कई बार ये, लेकिन इनके बगैर आप समझ नहीं पाओगे। तो वही है, टू टीच डिलीटेड यू हैव टू टीच अनडिलीटेड। ये डिलीटेड का मतलब ये पूरा पेज डिलीटेड है, ये डिलीटेड का मतलब पूरा पेज डिलीटेड है, ठीक है। वेक्टर मैंने नहीं बताया, आपको बीच में बता दूं, वेक्टर में NCERT में ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं दिया है, स्केलर ट्रिपल अलग से सप्लीमेंट था, NCERT में है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने वो पेजेस नहीं लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग में ये पेज नंबर्स और स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने डिलीट कर दिए। अब एक कंट्रोवर्सी है, फॉर्मुलेशन नहीं है, तो क्या वर्ड प्रॉब्लम वो देंगे विद फॉर्मुलेशन या नहीं, या खाली ग्राफ ही देंगे, ये है। तो एज सच मैंने वर्ड प्रॉब्लम जो बाउंडेड थे वो हटा दिए, थोड़ी क्लैरिफिकेशंस आनी है उसके हिसाब से। तो मेजर जो डिलीट हुआ वो मैंने हटा दिया है, बट देयर माइट बी सम पोर्शन, वो कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, तो फॉर्मुलेशन नहीं है तो वर्ड प्रॉब्लम दे के फिर कैसे होगा, तो ग्राफ वाले ही देंगे क्या। तो वैसे जो मैं हटा सकता था हटा दिया, अगर इसमें और कोई आएगी तो विल पुट इट, बाकियों में तो मैंने सब बता ही दिया आपको क्या है। एंड लास्ट कम्स प्रोबेबिलिटी, जहां मीन और वेरिएंस डिलीट हो गया,
प्लस मैंने एनसीईआरटी में बाइनोमियल थ्योरम जो पहले डिलीटेड था वो भी कर दिया, ताकि आप जब एनसीईआरटी करो आपको कंफ्यूजन ना हो। मिसलेनियस तक जाके मैंने ये सारे डिलीट किए हैं। ये 13.6.2 है, ये कोई कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल मीन और उसका ये है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये ऐसा कुछ मिला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ये पूरा डिलीटेड है, ये क्वेश्चन नंबर्स है, तो आप इसको आराम से अब वीडियो को कहीं भी पॉज करके अपना देख सकते हैं, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स you like the analysis. Very minutely we have done for that questions and as such for you, and hope to bring you same more. Keep liking our buttons, subscribing, and this is Keshav Agarwal signing off from Exemplar Point. And if you have any doubt, suggestion, you can mail us, reach to us, and we'll clarify you personally everything, right? Thank you guys. Bye.